FM तड़का लव स्टॉप विद निमिषा वर्मा। हाय एवरीबॉडी, दिस इज आरजे शिवांगी और आज मेरे साथ है निमिषा वर्मा। यह है एक माइंडसेट कोच एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट। ओवर 104K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। इनकी काफी रीच है। आइए बाकी जानते हैं इन्हीं से इनके बारे में। So first of all, I want to say that I introduce myself as a lover, as an awakening woman, a woman who loves women and loves herself. And that's after that, then I start to love other people. What I do, I create safe spaces for people, specifically when it comes to mindset. I help people to come out of their mind blocks when it comes to money, when it comes to relationship and their own self. So yes, I work around mindset coaching, and I am a mindset coach who works with women and obviously everybody, but women specifically because we carry a lot of generational trauma. It comes from our mothers and their mothers and their mothers, and we love shrinking, we love playing small, we don't know how to communicate our needs, we just love suppressing our sexual desires. So there's so much more that we have to work on, and I love what I do. So yes, this is who I am, this is what I do, and I keep changing, I keep evolving as a human being, as we all do. Hey yo, FM तड़का लव स्टॉप पर अगली बस इन अ शॉर्ट वाइल। FM तड़का लव स्टॉप विद निमिषा वर्मा। Valentine's Day is equals to for couples, for pairs, for lovers. Yeah. लेकिन हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। Absolutely. So, yes. आपका क्या सोचना है इस बारे में? I think you have to be your own lover first. You have to learn how to date your own self, and तभी जाके उसके बाद कुछ हो सकता है. Because I think that's what every person can really do this Valentine's, is to first of all receive more clarity about what kind of lover they are to themselves. Correct. So yeah, that's what I believe in, and that's what I tell everybody, that romance is a way of living, it's a lifestyle, and every day tiny little things are the most romantic ever. Like you and I can have a masala chai right now. It's gonna be romantic, And I think even eye contact, or just like holding hands, or just sharing some words of appreciation, that hey, you were there for me in my toughest times. So that's the romantic thing to do. Hey yo, FM तड़का लव स्टॉप पर अगली बस इन अ शॉर्ट वाइल। FM तड़का लव स्टॉप विद निमिषा वर्मा। जिनके पास ऑलरेडी है पार्टनर, जिन्होंने ढूंढ लिया है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, एंड कई सारे लोग तो मीम्स भी बनाते रहते हैं, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग, बट आई थिंक ये रियल है। बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं जिनको आप इग्नोर करते हो। किस तरीके से इस चीज से बचा जा सकता है? जब तक आप खुद से झूठ बोलते रहोगे तब तक आप किसी और से ऑनेस्ट कैसे हो सकते हो? देयर इज अ लॉट ऑफ वेज व्हेन वी हाइड। हम छुपते रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बट आपने बताया नहीं कि आपको चाहिए क्या था इन द बिगनिंग, राइट? सो हम बहुत चीज़ों को भूल जाते हैं, एंड वी फॉरगेट कि वी नीड टू कम्युनिकेट टू द अदर पार्टनर, and what are we seeking from that space, from that relationship, and that's why it is very important कि आप स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना शुरू कर दो, ताकि बाद के जो रेड फ्लैग्स हैं, जो दर करके आते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं, वो फिर पूरी रिलेशनशिप को ही ढक लेते हैं, and then you feel यार खुशी महसूस ही नहीं हो रही है। Correct. You get it? You feel so, then you feel like कि कहीं और से ढूंढते हैं इसको। Okay. Yes. So there's so many things that you feel because you're not just being honest with the other person. Hey yo, FM तड़का लव स्टॉप पर अगली बस इन अ शॉर्ट वाइल। FM तड़का लव स्टॉप विद निमिषा वर्मा।
आजकल चलता है यार, एज गैप काउंट नहीं होता. आप देखो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल्स हैं. दूसरी तरफ परसेप्शंस भी बने हुए हैं. How their relationship is going only they know. And I don't think कि यार एज एक्चुअली कोई फैक्टर ऐसा होता है. वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम में कभी कभी मैं किसी 11 साल के या 15 साल के इंसान से मिलती हूँ और उनकी मैच्योरिटी लेवल मुझसे भी ज़्यादा निकलती है यार. तो मैं जो कनेक्शन फील कभी कभी कर पाती हूँ इतने छोटी एज के पर्सन से, तो क्यों कोई मतलब एज को फिर बैरियर बनाए. इट इज ऑल अबाउट द कनेक्ट. एग्जैक्टली. ओके. FM तड़का लव स्टॉप पर अगली बस इन अ शॉर्ट वाइल. FM तड़का लव स्टॉप विद निमिषा वर्मा. एक टर्म है जो कि बहुत बहुत पॉपुलर है नाउअडेज रिलेशनशिप्स में, एंड दैट इज सिचुएशनशिप. कैसे पता लगाया जाए एम आई रियली डेटिंग और ये सिचुएशनशिप है? येस, यू आर राइट. ये बहुत कॉमन है. एंड इसमें प्रॉब्लम फिर वही आती है कि हम हमेशा कहते हैं कि चलो देखते हैं कि कहाँ जा रही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऑनलाइन डेटिंग ऐप खोला और आपको कोई पर्सन मिला, आपने डेट पे गए एंड कुछ तो था, मतलब ठीक है, कुछ महसूस हुआ, बट सामने वाला कहते हैं कि चलो ठीक है और टाइम स्पेंड करते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ जाता है. बताना पड़ेगा सामने वाले इंसान को कि वो अगर वो कमिटमेंट चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, उसको कुछ नाम देना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है. और अगर आपको लग रहा है कि अभी उसके लिए रेडी नहीं हो तो आप अटकाओ मत ना सामने वाले इंसान को. अब बताओ, ऑनेस्टली बताओ कि सॉरी, आई थिंक अगर आप ये चाहते हो मैं भी आपको ये नहीं दे सकती या दे सकता. एंड अब अगर आपको इस चीज से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सो परहैप्स वी शुड नॉट इंडल्ज. FM तड़का लव स्टॉप पर अगली बस इन अ शॉर्ट वाइल. FM तड़का लव स्टॉप विद निमिषा वर्मा. मेरा बेस्ट फ्रेंड and he is in a relationship since 7 years and the bandi wants to get married. And वो कह रहा है यार मैं चाहता हूँ उसके साथ रहना, मैं उसके साथ ही हूँ, I'm loyal but I don't want this commitment right now and he is going to be 30 very soon. If you're loyal and you love her, क्यों है ये phobia लोगों में? Comes from family trauma. Okay. लाइक फॉर एग्जाम्पल आज अगर मेरे पेरेंट्स का मैरिज मुझे नहीं दिख रहा कि यू नो अच्छा नहीं है और वो लड़ते रहते हैं यू नो, और सो ऑब्वियसली मेरे अंदर डर बैठ जाएगा कि अगर मैंने भी शादी कर ली तो मेरा भी ये हाल होगा. इसका एक अलग साइड भी ये है कि जब आप कमिटमेंट कर सकते हो तो आप चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हो और आप इंसान के साथ बढ़ सकते हो आगे, अगर आप उसकी फाउंडेशंस अपने हिसाब से सेट करो. FM तड़का लव स्टॉप विद निमिषा वर्मा. किसी को कमिटमेंट इश्यूज हैं तो और वो बंदी को पता है कि हाँ ये ट्रॉमा है, आई एम श्योर वो बंदी जानती होगी कि उसके पेरेंट्स का क्या सीन है या फिर घर पे क्या चला है, क्यों वो ऐसा सोच रहा है, क्यों वो कमिटमेंट फोबिक है. ऐसे में बंदी क्या कर सकती है? इन टुडेज टाइम आई फील कि हम सबको पता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. तो आज अगर आपको पता है कि मुझे कमिटमेंट फोबिया है निमिषा, सो वी कैन डिस्कस कि इसको कैसे रिजॉल्व करें. तो देयर आर सो मेनी कपल थेरेपिस्ट. सो आई बिलीव कि लोगों को लगता है कि आप फोटो में देखते हो कपल और कितना खुश है, इनको तो थेरेपी की जरूरत नहीं होती होगी. एक्चुअली जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं ना उनको काम करना ही पड़ता है. यू हैव टू पुट एफर्ट एंड ओनली देन द रिलेशनशिप रियली गोज हेल्दी. लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होते हैं, बट द थिंग इज दैट कि आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लेना ही पड़ता है. FM तड़का लव स्टॉप पर अगली बस इन अ शॉर्ट वाइल. मेरी एक फ्रेंड है, शी इज सिंगल एंड शी यूज टू डेट अ पर्सन जिसकी वजह से उसने अपनी कंट्री चेंज की, लेकिन कंट्री चेंज हो गई है, बंदा गायब है. Oh, no. So, but उसके करियर के लिए वो हाई पॉइंट था. अगर वो नहीं होता, उसको वहाँ से कुछ अप्रिसिएशन और से इंस्पिरेशन नहीं मिलता तो वो कभी अप्लाई नहीं करती है ना, उसको डबल प्रमोशन नहीं मिलता. सो
करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने बेस्ट फेज में है, एंड देन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने लो फेज में है. तो ये एक बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है. ऐसे में क्या करता है बंदा, वो 12 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करने लग जाता है. इज इट हेल्दी? और कुछ टाइम के लिए आप कर सकते हो या फिर नहीं, आपको बहुत जल्दी इस सिचुएशन से निकलना चाहिए? थोड़े टाइम के लिए चलता है, बट उसके बाद अगर आप समझ लो 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, आपकी बॉडी थक रही है उसकी वजह से, आपको कुछ कहना चाह रही है, डिजीजेज होने शुरू हो गए हैं आपको मे बी, सो आपको ऑब्वियसली ये सिग्नल मिल रहा है कि नहीं, इसको रिलीज करो, इसको सॉल्व करो, हेल्प लो किसी से, यू नो, किसी प्रोफेशनल से इस बारे में बात करो. एंड एक अच्छा खासा एक क्राइंग सेशन 2-3 घंटे इधर हाथ मार मार के रो, थोड़ा अच्छा खासा वो होता रहता है, वो मतलब एक रिलीज होना प्रॉपर कि मतलब हो गया है. Oh yes. FM तड़का लव स्टॉप पर अगली बस इन अ शॉर्ट वाइल. FM तड़का लव स्टॉप विद निमिषा वर्मा. आजकल ये बहुत बड़ा टेंशन है कि यार कुछ ऑर्गेनिक नहीं हो रहा है. स्कूल में मिलते थे, डेट करते थे, फिर कॉलेज पहुंच गए, एंड देन शादी हो गई, या फिर कॉलेज में मिले, ऑफिस में मिले. ये चीज़ें बहुत लिमिटेड हो गई हैं आज के टाइम पर. ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं हो रही है, हमें खुद जाना पड़ रहा है डेटिंग एप्स पे, एंड वहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ रहा है कि कोई हमें मिल जाए हमारे लिए. मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मैंने कभी डेटिंग ऐप यूज़ नहीं किया. ओके. एंड जब भी मैं किसी से मिली हूँ ट्रैवल करते करते किसी से कनेक्शन हो गया, लाइक यू नो, ऐसे ही हुआ है. फनी. काइंड ऑफ. एंड मैंने खुद के लिए जो डिसाइड किया था यही था कि मुझे तो किसी से ऑर्गेनिकली ही मिलना है. सो आई फाउंड माई हस्बैंड ऑर्गेनिकली एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हिम एंड वी आर वेरी रियल विद ईच अदर. सो आई एम ग्लैड कि जब भी हम किसी को स्टोरी बताते हैं हमारी ऐसे मिले थे तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हम लाइक किसी स्वाइप ऐप के थ्रू नहीं मिले थे.